हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। इलेक्टोरल रिफॉर्म। व्हाट यू मीन टू इलेक्टोरल रिफॉर्म हियर? In order to restore the confidence of public in the democratic electoral system, the many electoral reform has been to recommended from time to time by the Tarundas Committee and the Goswami Committee, which are the particularly is appointed to study and report on the themes for electoral reform in year 1974 and 1990. There is respectfully, and the out of this is accommodations is a sum has been to implemented. In fact, it is under to the chairmanship of the Chief Election Commission, T.N. Sena, that Election Commission is invited to the many more measures to ensure the free and fair election. Some of the reform which has been to be implemented so far are flowing here. The first is the voting age has been to the lowered from 21 years to the 18 years. And this has helped to increase the number of voters and spawns confidence in the youth of the country. And second here, another landmark of change has been to the increasing in amount of security deposit by the candidate to be prevent many is a nominaries is a candidate from the contesting election with their its motives. And the photo identity card has been introduced a eradicate of the dual voting impersonation. There is the most important here. With the introductions of the electronic voting machine (EVM), the voting capturing is arriving, and the bogus votings may be not be possible. The bogus is the votings may be not possible here, and this use of EVM will be in there's a long run results in the reducing the cost of the holding election and also the incidence of tamperings during to the counting of votes. And if a discrepancy is found between the number of votes polled and the number of total votes counted, the returning officers is a way to report the matter is a forth with the elections commission. An election commission on such as a report may be either or declare the poll at the particular polling station as valid and given a date from a fresh poll or is a counter amend elections there are contingency. And there is a no doubt that India is a need to is a drastic pose reform, but still the fact remains that the Indian election has been to largely free and fair and successfully conducted. It's give to country the proud distinction of began to the large democracy in the world. अब यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि हमने चुनाव आयोग द्वारा दी गई निर्देशों का जो है लोगों द्वारा यानी प्रत्याशी द्वारा खंडित किया जाना यानी दोष था। अब जो है इसमें चुनाव में हम कुछ सुधार करके चुनाव की जो है गरिमा को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। कहते हैं ये दोष जो उत्पन्न किया गया है, जो इसकी दोष है वो बहुत ही गलत है, जो भारत में एक बहुत बड़ी जो है डेमोक्रेसी के लिए घात का भी विषय बन उठता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो चुनाव सुधार करके जो है कई मायने में इन चीज़ों को जो है बदलाव किया जा सकता है। कहते हैं लोकतंत्र चुनाव पर जो है प्रक्रिया में जनता के विश्वास को जो है पुनर्स्थापित करने के लिए क्रमश 1974 और 1990 में विशेष रूप से चुनाव सुधार की योजना का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए नियुक्ति भी की गई थी। इसमें तारकुंड समिति द्वारा अनेक जो है सुधारों की सिफारिश भी की गई थी। इन सिफारिशों में से कुछ को लागू भी किया जा चुका है। देखिए दोस्तों, बात बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है कि चुनाव, देखिए जब तक चुनाव सुधार नहीं होगा, जब तक जनता को हम ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि आपके द्वारा चुना गया व्यक्ति ही वास्तविकता में सिलेक्ट हो रहा है, ना कि जो धन के लिए लालच दे के, पानी के लालच दे के, बिजली के लालच दे के ही जो बंदा आगे चुना गया है। क्योंकि जनता में विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर आज देखा जाए तो अमीर वर्ग के लोग जो होते हैं वो इलेक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते हैं। आज देखा जाए तो गरीब लोग ही जो है लालच में आके जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप इसके निरीक्षण भी करोगे या अगर आप जांच पड़ताल भी करोगे तो ये आप पाओगे कि अमीर लोगों में इतना इंटरेस्ट आज के समय में नहीं रह गया है इलेक्शन के लिए। जैसे अमेरिका में भी इलेक्शन के लिए जो लोगों का जो है बहुत ही जो है विचारधारा गिर चुका है, क्योंकि उनका मानना है कि दो पार्टी वहाँ पर भी होती है तो उन्हीं में से किसी एक पार्टी की जो है मेजोरिटी बन जाती है। तो भारत में भी यही बात सोचा गया है कि भाई जिस पार्टी के पास पैसे हैं, धन दौलत है, वही पार्टी जो है जीतेगी, इसलिए बड़े व्यक्ति जो है कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब कहते हैं और जो गरीब लोग हैं इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं कि सरकार या तो उनको
वोटिंग के रिगार्डिंग जो होता है घर आवास देते हैं या बहुत सी सुविधाएं जो होती है वोटिंग करने पर ही उनको प्राप्त होती है, इसलिए गरीब लोग जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है। लेकिन भारत ऐसे नहीं बन सकता है आगे, और नहीं ये आगे चलने के लिए जो सशक्त बन सकता है। इसके लिए अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबका जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। और इसके लिए जो है चुनाव में सुधार करना और जो गलत चीज़ें हैं उनको हटा के निकालना, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कहते हैं हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही हो जिसमें कोई तरह का जो है भेदभाव ना हो और इलेक्शन जो है फ्री और स्वतंत्र हो, और इसमें किसी तरह के जो है गलत प्रावधान जो है सम्मिलित ना हो। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था, जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उसको समाप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तभी जो है अमीर से लेकर गरीब व्यक्ति तक भी इसमें जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और देश के जो है सही जो है डेमोक्रेसी बनाने के लिए अग्रसर होंगे। इसीलिए कहते हैं बहुत से सिफारिश हुआ और बहुत से रूल रेगुलेशन भी इस पे लागू किया गया है। वास्तव में उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त टी.आर. शोसन की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई नए उपायों भी अपनाया गया। कहते हैं अब तक लागू किए गए कुछ सुधार निम्नलिखित थे, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला सुधार तो यही था कि मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इससे वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई तथा देश में युवाओं में विश्वास प्रकट किया, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है। कहते हैं युवा ने अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए सदैव ही कहते हैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया है। चुनावों की अमृता से न लेने वाले कई उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुरक्षा राशि भी बढ़ा देना एक अन्य बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। तो कहते हैं ये बहुत ही बड़ी बात और इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पर जाली मतदान और जो है बोगस मतदान के उन्मूलन के लिए फोटो पहचान पत्र भी शुरू किए गए हैं। फोटो जो है पहचान पत्र के रूप में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही कि पहले के समय में बोगस वोट अधिक दिया करते थे, कोई भी किसी के नाम से वोट दे देते थे। तो इसलिए जो फोटो लगाना भी जो है सही भी मान्यता में सही भी रहा है। जाली मतदान करना जो है कहते हैं ये प्रावधान बन गई थी, जिसकी वजह से जो बाहुबली व्यक्ति होता था या पैसे वाला होता था या कहते हैं गलत रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति होता था, वो चुनाव जो होता था बहुत आसानी से जीत जाता था। इवन कि अभी के समय भी ऐसा देखने को कई क्षेत्र में आपको मिला होगा, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं अगर देखा जाए तो और भी सुधार के रूप में देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू होने से मतदान केंद्र पर जो है कब्जा करने, हेराफेरी और जाली मतदान संभव नहीं हो सकेगा। आपने देखा ही होगा कई फिल्मों में जो होता है वहाँ पर हेरा फेरी भी होती है, बॉक्सों की कब्जा भी कर लेते हैं और जाली मतदान भी करने लग जाते हैं। लेकिन वोटिंग मशीन से ये होता है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है संरक्षित कर ली जाती है। ठीक है, कहते हैं ईवीएम के प्रयोग से कुछ समय बाद चुनाव करवाने के खर्च को कम करने तथा गिनती के समय बेईमानी घटना भी कम हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट थी कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने से जहाँ जो है समय का जो है बचत हो गई, बहुत से व्यक्ति चुनाव देने के लिए भी बहुत जल्दी फास्ट भी हो गया और कहते बेईमानी की घटनाएं भी कम होने लग गई। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आपने टीवीओं में देखा ही होगा कि हर एक पार्टी जो होता है दूसरे पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं कि इन्होंने वोटिंग जो है ईवीएम मशीन में छेड़खानी किया है, ईवीएम मशीन को अपने फेवर में किया है। इवन कि आपने देखा भी होगा कि कुछ साल पहले जो है ईवीएम्स के टेस्ट भी करवाए गए थे, ठीक है, लेकिन इसमें जो रिजल्ट आई सारे फॉल्स आई कि जो भी पार्टी गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सारे फर्जी हैं। कहते हैं जहाँ पर वो लोग जीत जाते हैं वहाँ कहते हैं कि सब मशीन सही था, और जहाँ पर वो लोग नहीं जीतते हैं वो कहते हैं कि मशीन में कुछ गड़बड़ी थी, मशीन एक पार्टी के लिए काम कर रही थी। तो ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का इनका जो है एक फार्मूला बन गया है। उनको पता है कि ऐसे करके ही वो अपने जो है पत्ता झाड़ सकते हैं। तो ये बड़ी बात घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी जो है इलेक्शन कमीशन की बुद्धिमत्ता के कारण ही आज जो है बहुत कुछ सुधार में यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ डाले गए मतों की संख्या तथा गिनने गए मतों की संख्या में अंतर मिलने पर रिटर्निंग अधिकारी सीधे चुनाव आयोग को सूचना दे सकता है। ऐसी रिपोर्ट मिलने पर चुनाव आयोग किसी विशेष जो है मतदान केंद्र पर हुए चुनाव को अवैध घोषित भी कर सकता है। ये भी प्रावधान किया गया है और नए चुनाव तिथि की निश्चित कर सकता है अथवा उसे पूरे चुनाव क्षेत्र का जो है चुनाव रद्द कर सकता है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रावधान बनाया गया है कि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि हम जो है डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर जो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सदैव ही विजय होती है। चाहे जो मर्जी जितने भी मर्जी लोग कर ले, कहते हैं ना आखिर में जो जीत होती है हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। तो यही बात चुनाव आयोग भी
सिद्ध करने की यहाँ पर कोशिश किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर जो होगा पार्टियों के विषय में होगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, तो उसको देखना आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ये तब देख पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दोस्तों यहाँ पर दो बातें मैं हमेशा रखना चाहता हूँ और रखता भी हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक शेयर करना, जिससे वो एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर ले, अपनी समझ से जो है एग्जाम लिख सके। क्योंकि एक बार अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो ये कई मानने में आपको फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि जहां पर आपको आवाज़ों के थ्रू समझाया जाता है, वही जो है अक्षर का डिस्प्ले भी होता है, जहां से आप अपने नोट डाउन भी कर सकते हो। तीसरी बात ये भी रहती है कि आपको जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, यानी आप इंग्लिश के वर्ड से जो है हिंदी को भी समझ सकते हो। तो इतना कुछ इसलिए किया जा रहा है और इतना अधिक मेहनत इसलिए किया जा रहा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो। तो आपका भी फर्ज है जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में अपना जो है विशेष योगदान देना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको सब्सक्राइब करके रखना भी, सेव करना भी आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि बाद में अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर को सर्च करोगे तो वो शायद जो है गूगल से करो, चाहे आप यूट्यूब पे करो, तो वो त्रिपुरा लिखा हुआ आएगा, तो आपको शायद तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर वही सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल, तो इसका जो है सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगी मिलती रहेगी समय समय पर। और प्लस अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप इसके चैनल पे जाके इसके वीडियो के ऑप्शन में देख सकते हो। यहाँ पर सभी वीडियो जो है बहुत आसान तरीके से उपलब्ध रहेगा। जो भी वीडियो आपके क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उस वीडियो को देख के जो है अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अग्रसर भी हो सकते हो।